Student, I am Neha Miklani. Today I am going to start the topic of methods of measurement of elasticity part 3. This is my third video of this topic. In my previous video, I have already discussed the two methods of the measurement of the elasticity, that is the proportionate or percentage method and total outlay or total expenditure या फिर उसको total revenue method भी कहते हैं. So I have already discussed these two methods. Now I'm in my today video I'm going to discuss the third and fourth maybe cover fifth method of the measurement of the elasticity. Starting my videos, I just want to say that just get enrolled yourself in the Diwakar Education Hub and you can get most reliable data for your net preparation on the topics or on the subjects on commerce, management, education, HRM, economics, English, home science, law, psychology, environmental science, computer application, library science, political science, sociology, philosophy, physical education. And you can also get the sample PDFs from the Diwakar Education Hub. And for any query, you can call on the number which are given on the screen. So there are 5 methods of measurement of the elasticity. First one is the percentage method or proportionate method, which I have already discussed in my video part number 1. And then second method, total outlay method or total revenue method. This method is also called the total expenditure method, and this method has been discussed in my second video of the measurement of elasticity part 2. Now I am going to cover the third method, geometric method or point method, and arc elasticity of the demand method. So according to I have already discussed these two methods in my previous videos. Now come to our third method, that is our geometric or point method. This method is also given by Alfred Marshall. Alfred Marshall has given the proportionate method also. Also he has given the total revenue or expenditure method, and the geometric or point method is also given by the Alfred Marshall. According to this method, the elasticity can be measured at any point on a demand curve by dividing the lower portion by the upper portion. According to this geometric method, if the elasticity amount, if the prices amount, if the demand quantity demands जो अमाउंट है वो स्मॉल प्रोपोर्शन में हो, स्मॉल पोर्शंस में हो, मतलब 2 3 5 4 7 8 9 10 समथिंग लेस देन 100 हो, then we can use this method also, geometric or point method. According to this method use the demand curve. ये सबसे पहले हम बाकी सारे मेथड्स में हम क्या देखते हैं कि बाकी सब मेथड्स में जो है सबसे पहला फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, आफ्टर दैट उस फॉर्मूले के थ्रू हम डिमांड कर्व बनाते हैं. बट अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वी यूज़ द डिमांड कर्व. हम बने बनाए डिमांड कर्व को यूज़ करके वहाँ से एलास्टिसिटी निकालने की कोशिश करते हैं. तो डिमांड कर्व में हम क्या करते हैं, elasticity can be measured with the help of the formula लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट. इसमें क्या करते हैं, जो डिमांड कर्व का जो लोअर पोर्शन होते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं अपर पोर्शन के साथ और उसके थ्रू हम एलास्टिसिटी निकालने की कोशिश करते हैं. ये जो मेथड है बहुत ही लेस एप्लीकेबल होता है, और ये जो मेथड होता है ये मेथड तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारे प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड की जो अमाउंट है वो स्मॉल प्रोपोर्शंस में हो, स्मॉल हो, तो उससे डिमांड कर्व बनाना आसान हो जाता है और उस डिमांड कर्व के थ्रू हम एलास्टिसिटी निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड. एंड वी यूज़ द फॉर्मूला लोअर पोर्शन डिवाइडेड बाय द अपर पोर्शन. नाउ व्हाट इज़ द डायग्राम, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ डिमांड कर्व. डिमांड कर्व इस तरीके से ही बना होता है और इस पर हम डिफरेंट पॉइंट्स बनाते हैं. ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू हम डिसाइड करते हैं व्हाट इज़ द एलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड. आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द लाइव वीडियो. अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक मेथड सबसे पहले हम डिमांड कर्व बना होता है उसको लेते हैं. यहाँ पे प्राइस होगी, यहाँ पे आपकी डिमांड होती है.
और डिमांड कर्व ऑलरेडी बना होगा हमारा इस स्टेट पे, और इस पे हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को लेके जो है एलास्टिसिटी मेज़र करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक मिडिल पॉइंट होता है, ये हमारा लोअर पॉइंट होगा, ये हमारा अपर पॉइंट होगा, ये मिडल का मिडल और ये भी मिडल का मिडल। अब इसमें इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं? इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो इक्वल टू ज़ीरो होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि आपकी डिमांड में नो चेंज आएगा। ठीक है, नो चेंज कैसे आएगा डिमांड कर्व में? डिमांड कर्व में नो चेंज इस तरीके से आता है क्योंकि यहाँ पे डिमांड हमेशा हमारी इस वे में रहती है। आपकी चाहे प्राइस बढ़े चाहे कम हो, आपकी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं आता है। सो दिस इज़ कॉल्ड ईडी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस पॉइंट को देखेंगे, ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी में क्या होता है, आपकी जो डिमांड है वो इन्फिनिटी होती है, मतलब आपकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बट आपकी जो डिमांड है वो चेंज दिखा रही है। ठीक है, डिमांड आपकी चेंज आती रहेगी। क्लियर? उसको हम बोलते हैं ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब मिडल वाला पॉइंट, ईडी इज इक्वल टू 1, इसमें क्या है, आपकी जो प्राइस सेम है, डिमांड आपकी इस प्रपोर्शन में, जितना प्राइस राइज करेगा डिमांड भी उस हिसाब से आपकी बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पे आपका आता है ईडी ग्रेटर देन 1, प्राइस कम चेंज दिखा रहा है बट आपकी डिमांड में बहुत सारा चेंज आ रहा है। इसमें ईडी लेस देन 1, प्राइस में कम चेंज आएगा बट आपकी डिमांड जो है बहुत कम चेंज दिखाएगी। वो कैसे? फॉर्मूला के थ्रू। हमने क्या पढ़ा है, ज्योमेट्रिक मेथड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, लोअर पोर्शन डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन। लोअर पोर्शन, यहाँ पे हमारा लोअर पोर्शन 0 है, डिवाइडेड बाय अपर 5 है, तो फिर 0 आएगा। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तभी समझ आएगा आपको। ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस, यहाँ पे प्राइस ली, यहाँ पे हमने क्वांटिटी ली, ये हमारा डिमांड कर्व बना, इस पे हमने 5 पॉइंट्स बना दिए। ठीक है, ये हमारा 5 पॉइंट मतलब हमारा डिमांड कर्व 5 का है। यहाँ पे 5, यहाँ 4 लिया हमने, 3 लिया, 2 लिया। ठीक है, यहाँ पे 1 लिया। ठीक है, 5, 4, 3, 2 एंड ये हमारा 1। क्लियर? अब सबसे पहले हम इधर का लेंगे, ईडी लोअर पोर्शन हमारा यहाँ पे 0 है, डिवाइडेड बाय 1 0 है। क्लियर? इसके बाद ऊपर वाला पोर्शन लिया हमने, ईडी निकालेंगे। ठीक है, अपर पोर्शन हम, लोअर पोर्शन कितना है हमारा 5, और उससे अपर पोर्शन कितना है 0। 1/0 हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी, तो दैट इज इन्फिनिटी। लोअर पोर्शन है हमारा 1 2 3 4, अपर पोर्शन कितना है 1, तो ये कितना आया, ग्रेटर देन 1। अब इस पॉइंट पे लोअर पोर्शन हमारा 1 2 3, अपर पोर्शन 1 2 3 इक्वल टू 1। यहाँ पे लोअर पोर्शन हमारा है, ठीक है 2, अपर पोर्शन कितना है 3, लेस देन 1। अब क्लियर है इलास्टिसिटी कैसे मेज़र की जाती है हमारी ज्योमेट्रिक मेथड के थ्रू। हमारे पास ऑलरेडी एक डिमांड कर्व होगा, वहाँ पे पॉइंट्स बने होंगे, उन पॉइंट्स पे हम लोअर डिवाइडेड बाय अपर करके इलास्टिसिटी मेज़र करने की कोशिश करेंगे। और इलास्टिसिटी आपका हमेशा इसे, जहाँ डिमांड की आपकी अपर साइड होगी वो हमेशा इन्फिनिटी के बराबर होगी, इसकी जो इक्वल साइड होगी वो इक्वल के बराबर, और इससे ग्रेटर और ये लेस और इक्वल टू 0। टू अवर नेक्स्ट मेथड दैट इज़ अवर आर्क मेथड।
आर्क मेथड जो है वो भी अल्फ्रेड मार्शल के थ्रू ही गिवन है। अल्फ्रेड मार्शल क्या कहता है, जो आर्क मेथड है वो पॉइंट इलास्टिसिटी डिमांड मेथड की तरह ही है, बट जो पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड है वो कभी एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास क्वांटिटी डिमांड और प्राइसेस में स्मॉल चेंज आ रहा है, तब हम जो है वो इलास्टिसिटी जो है ज्योमेट्रिक की लेंगे। बट अगर हमारे पास जो है चेंजेस जो है लार्ज अमाउंट में है, तब हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, आर्क method. So in order to compute elasticity coefficient between the two different and distant point of the demand curve, the concept of elasticity of demand is employed. अगर हमारे पास जो एलासिटी है दो कोफिशिएंट्स के बीच में डिफरेंट की है, मतलब क्या कहने का है, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स है डिमांड के, मतलब प्रीवियस डिमांड है और करंट डिमांड है, प्रीवियस प्राइस है और करंट प्राइस है, तब हम आर्क एलासिटी मेथड को यूज कर सकते हैं। So ARC method use the average of the original price and the new price and the original quantity and the new quantity to determine the elasticity of the demand. ARC method में क्या होता है, we use the average मतलब ओरिजिनल प्राइस का और न्यू प्राइस का, और एवरेज किसका लेंगे, ओरिजिनल क्वांटिटी का और न्यू क्वांटिटी का। हम एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है विद द हेल्प ऑफ आर्क मेथड मेजर कर सकते हैं। सो फॉर्मूला क्या है, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी प्लस न्यू क्वांटिटी, चेंज इन द प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस प्लस न्यू प्राइस। ठीक है, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड मतलब Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी प्लस न्यू क्वांटिटी, एंड चेंज इन द प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस प्लस न्यू प्राइस। और इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। एंड इसके जो सिंबॉलिक टर्म्स है वो इस तरीके से है, डेल्टा क्यू को हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहते हैं, डेल्टा पी को चेंज इन प्राइस कहेंगे, और P1 को ओरिजिनल प्राइस, और Q1 को ओरिजिनल क्वांटिटी, P2 को न्यू प्राइस एंड Q2 को हम न्यू क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, इसके फॉर्मूले की हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब हमने क्या पढ़ा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालेंगे, आर्क मेथड के थ्रू। हमने क्या पढ़ा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी प्लस न्यू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस प्लस न्यू प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मतलब Q1 माइनस Q, ओरिजिनल क्वांटिटी Q प्लस न्यू क्वांटिटी Q1। Q क्या है हमारे पास, Q स्टैंड फॉर ओरिजिनल क्वांटिटी, Q1 स्टैंड फॉर न्यू क्वांटिटी। उसके बाद फॉर्मूला है चेंज इन प्राइस P1 माइनस P डिवाइडेड बाय P1 P प्लस P1। P1 क्या है, न्यू प्राइस, P है ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा Q प्लस Q1 डेल्टा P1 प्लस P, डेल्टा Q1 प्लस Q मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस P डेल्टा P। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस P Q1 प्लस Q। क्लियर।
the formula explanation how this formula is formed. Now we can also explain arc method with the help of example. Now let's see what is the example. Consider a burger store that raised the price of burger from 50 to 60. एक हम बर्गर स्टोर की एग्जाम्पल लेते हैं. बर्गर स्टोर ने क्या किया, प्राइसेस बढ़ा दिए. 50 रुपीज़ थे पहले, फिर 60 रुपीज़ हो गए. एंड फाउंड डेली सेल्स ऑफ बर्गर डिक्लाइन. ऑब्वियसली प्राइस बढ़े हैं तो सेल तो बर्गर की कम होगी ही होगी, डिमांड कम होगी. जो जितनी डिमांड पहले 50 रुपीज़ पे 2000 की डिमांड थी, जब उसने प्राइसेस 60 कर दिए तो 1500 की डिमांड हुई. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज आर क्वाइट बिग. हमने चेंज कितना देखा है, बहुत ज़्यादा है. देखो 50 रुपये से 60 रुपये बढ़े, सिर्फ 10 रुपये का चेंज आया. पर जो हमारी डिमांड थी बर्गर की, उसमें बहुत सारा चेंज आया. तो इस तरीके के चेंज को दिखाने के लिए हम आर्क एलास्टिसिटी मेथड को यूज़ कर सकते हैं. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन्वॉल्व्ड आर क्वाइट बिग एंड द प्राइस एलास्टिसिटी मेजर टू बी यूज्ड हियर इज आर्क एलास्टिसिटी. सो इस केस में हम आर्क एलास्टिसिटी मेथड को हम यूज़ करेंगे. ठीक है, तो किस तरीके से है एक्सप्लेन, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बताया हुआ है, बट फिर भी मैं इसको एक लाइव वीडियो के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करके दूंगी कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. क्या देखा है हमने आर्क मेथड में, हमारी जो एग्जाम्पल है, आर्क मेथड की जो एग्जाम्पल हमें क्या कहती है, प्राइसेस हम लेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी लेंगे डिमांड की. प्राइसेस पहले 50 रुपीज़ थी, प्राइसेस उन्होंने बढ़ा दी. ठीक है, फिर डिमांड उस टाइम पे 50 रुपीज़ पे 2000 की आ रही थी, प्राइसेस बढ़ने से डिमांड जो है 1500. प्राइसेस में चेंज कितना आया, सिर्फ 10 का, बट डिमांड में कितना चेंज आया, 500 का. तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज है वो ज़्यादा आ रहा है, तो इस केस में हम आर्क एलास्टिसिटी मेथड को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने यही चीज़ डिस्कस की हुई है. जो हमारा ज्योमेट्रिक मेथड है वो तभी ही यूज़ होगा जब जो हमारे डायग्राम्स में, कर्व में जो चेंजेस हैं वो बहुत छोटे छोटे हों. बट जब चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तब हम आर्क एलास्टिसिटी मेथड को यूज़ करेंगे. ठीक है, तो इसमें हम पॉइंट से डिटरमाइन करेंगे. ये क्या है, हमारी प्रीवियस क्वांटिटी और ये हमारी न्यू क्वांटिटी, और ये हमारी प्रीवियस प्राइस और ये हमारी न्यू प्राइस. आर्क मेथड का फॉर्मूला अप्लीकेबल करेंगे हम, जिसको हम ईडी के साथ डिनोट करते हैं. इसमें हमने फॉर्मूले में हमने क्या चीज़ डिस्कस की है, फॉर्मूले में हमने देखा है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस P डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q. अब डेल्टा क्यू मतलब Q1 माइनस Q, डेल्टा P1 माइनस P, यहाँ पे P1 प्लस P, Q1 प्लस Q. Q1 कितना है हमारे पास, जो है 1500 माइनस 2000. P1 कितना है हमारे पास, 60 माइनस 50. P1 कितना है हमारे पास, 60 प्लस 50, और ये है 1500 प्लस 2000. 1500 माइनस 2000 माइनस 500. 60 माइनस 50 10. 60 प्लस 50 10. 1500 3500. ठीक है, ये जो है हमारे यहाँ जो 00 यहाँ पे कट गए 7. ठीक है, और जो है कट गए. ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, -11/7, विच इज़, करो मल्टीप्लाई, 7 4.507. सो अप्रॉक्सीमेट क्या वैल्यू है, -5 विच इज़ लेस देन 0. क्लियर? I have explained these two methods, geometric method and arc method, with the help of diagram, with the help of example. I hope you will all understand what are these methods. Now
there is one method left, that is the revenue method, and I am going to discuss this method in our next video. Please go through this my videos, and you will betterly understand what are these methods. Most of the questions of UGC net exam has been asked from these measurement of elasticity methods, and this is a very important topic for UGC net management, for UGC net subject commerce, for UGC net subject economics. Please go through these videos, it will be very helpful for you. Thank you so much.